Hi guys, welcome to my channel. My name is Rushika Kashyap and in today's video we're going to talk about the kind of mistakes that I've done in college, and if you're in college these advices are going to come in handy. So without further ado, let's get right into the video. First advice that I want to give you is to network as much as possible. Networking is crucial in college. क्या होता है ना कि हम लोग हेजिटेट करते हैं अपने ग्रुप से, सर्कल से बाहर निकलने के लिए. तो जो आपने फर्स्ट एक दो फ्रेंड्स बनाए होते हैं ना, आप इतने ज़्यादा उसमें घुल मिल जाते हो कि बाहर के बिना दूसरे लोगों से बात नहीं करते हो. बट कॉलेज इज लिटरली द प्लेस टू टॉक टू एवरी सिंगल पर्सन. These are the kind of connections that are going to help you in getting a job in the future. But हाँ, obviously make sure that you're coming from a very very genuine place. Friendships भी वही काम की होती है जहाँ पे सच में there's a proper relationship. But try and network with as many people as possible from different backgrounds. You learn so much. सब different cultural backgrounds से आते हैं, economical backgrounds से आते हैं. You get to learn so much. It opens your mind to the world. First time ऐसा हो रहा है कि आप स्कूल से निकल के एक different environment में आ रहे हो जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं. So it is very very crucial to network because first it will help you in opening up your mind. It will help you in growing your own career in your own life. बहुत सारी मस्ती करने को मिलेगी क्योंकि different लोग different तरीके के behaviors होते हैं उनके, different तरीके की perception towards the world होता है, different तरीके का कल्चर होता है, तो उनके सारे फेस्टिवल्स कैसे मनते हैं. लाइक दिस सो मच टू लर्न इन कॉलेज. समहाउ आई ऑल्सो मिस्ड आउट ऑन दैट बिकॉज आई वॉज जस्ट हेजिटेड. जस्ट गो. आई थिंक सब एक दूसरे से बात करना चाहते हैं कॉलेज में. वो फर्स्ट इनिशियल कॉन्वर्सेशन करने की बात होती है. थोड़ा सा डर लगेगा, हेजिटेशन होगी, बट गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम दैट यू कैन गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड टॉक टू so many people, make new friends. And I would highly emphasize on networking as much as possible. Second advice that I want to give you is extracurriculars are not a waste of time. Not at all. स्कूल में यही सिखाया जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स टाइम पास के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत आपका CV बिल्ड करने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली में जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे एज देगा दूसरे लोगों से, दैट वुड बी योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द इवेंट्स दैट यू पार्टिसिपेटेड इन, द people that you've met who have shaped your personality. So participating in events and actively seeking a position in those societies is extremely important. क्योंकि जब आप अपने CV में लिखोगे that you have been the president of a society or a VP of the society, then it gives you an edge over the other people, other students. Simply because जब आप leadership positions पे होते हो तो interviewer को एक hint मिलता है that you are at least capable of handling and coordinating a set of teams. You know how to handle a responsibility. You can actually work in a corporate setup. So basically actively participating and seeking a position in the societies is extremely important in colleges that you should never ignore. This is also a great way to find your own hobby, find something that you love and keep working towards it. क्योंकि आगे करियर में जाके ना तुम अपने जॉब में इतना घुस जाते हो कि साइड में कुछ करते नहीं हो, तो ये साइड में करने वाली चीज़ यहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाती है क्योंकि तब आपका एकदम हैबिट बन जाती है वो करने की. सो मेक श्योर दैट यू ट्राइंग न्यू थिंग्स, डूइंग मोर थिंग्स बिकॉज कॉलेज इज लिटरली द स्पेस टू हैव फन, लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स एंड यू शुड नेवर मिस आउट ऑन दैट. नंबर 3, फेल फास्टर. बहुत सारे लोग जो है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, दे स्टार्ट लाइक स्टार्टअप्स और ये सब एंड दे फेल. The thing is that you need to fail to succeed. This is the only way, only process of success. कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप फेल करोगे अपने मिस्टेक से लर्न करोगे, उसको इम्प्रोवाइज करोगे एंड देन यू डू द परफेक्ट थिंग और आपको सक्सेस मिलता है. सो फेल फास्टर. डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग. सिर्फ फेलिंग के डर से वो चीज़ तुम अटेम्प्ट ना करो, दैट इज रॉन्ग. अटेम्प्ट, फेल, इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव and succeed. This is the only cycle that you need to follow. कभी भी फेलियर से डरना मत, क्योंकि फेलियर से डरोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे. लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फेल इन योर कॉलेज टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट हैव फ्यूचर टू थिंक अबाउट लाइक ऑन इमीडिएट बेसिस. अभी आपको पैसे नहीं कमाने, कहीं इन्वेस्ट नहीं करने, कुछ नहीं करना. यू जस्ट हैव टू स्टडी, लर्न, एक्सपीरियंस लाइफ एज इट गोज. So college is literally the best time to fail and learn new things. Number 4, don't imagine, act. Action is extremely important. अगर आप अपने दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव और आइडियाज़ बना रहे हो और उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो दुनिया को कैसे पता लगेगा. कभी ना कभी किसी और के दिमाग में वो आइडिया आ जाएगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. सो मेक श्योर जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया आए आप उसकी प्लानिंग पे लग जाओ. सोचो मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, बस एक्शन लो.
कॉलेज के अंदर आप वो एक्शन ले सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, हाई रिस्क चीजें करो, गो ऑल इन, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डू इट, जस्ट डू इट एंड डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। जो भी इमेजिनेशन में आ रहा है तुम करो और जी भर के करो। नंबर 5, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। क्या होता है कि लाइफ में इन जनरल कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न। जितने भी लीडर्स आप देखोगे दे आर ग्रेट एट कम्युनिकेशन, दे नो हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द राइट कम्युनिकेशन, कहाँ बोलना है, कहाँ सुनना है, कहाँ चुप रहना है। ये 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड कॉलेज इज लिटरली योर प्ले ग्राउंड टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सो कम्युनिकेट विद देम। अगर आपकी कभी किसी से लड़ाई होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, उससे भागो मत। कभी भी लाइफ में तुम सिचुएशन से भाग नहीं पाओगे, इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू learn how to deal with people, to manage people, to manage your own emotions, to regulate your own emotions. All of these things are very important. This can only come from reflection and communication. So these are the 2 key things that you really need to learn in your college. Don't run away from your problems. You have to face them head on because life तुम्हें बहुत problems दिखाएंगी. Number 5, don't limit yourself to a specific field. Like I said, college is a playground. सब कुछ सीखो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, सारी सोसाइटीज़ में जाओ, अप्रोच करो, सब कुछ ट्राई करो, डांस करो, म्यूजिक करो, एकेडमिक्स करो, प्रोजेक्ट्स करो, ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करो, लर्न सो मेनी थिंग्स, लर्न सो मेनी थिंग्स, एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स एंड देन डिसाइड कि आपको सच में जेन्युइनली क्या पसंद है, क्या आपको ये दिल को खुश करता है। ये मत सोचो कि उससे कितना पैसा आएगा, ये मत सोचो उससे कितना फेम मिलेगा आगे जाके लाइफ में। आपको करियर का डिसीजन अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि आपको क्या चीज़ करना पसंद है, किससे आपको खुशी मिलती है। लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप यू नीड समथिंग टू जस्ट फॉल बैक ऑन। इट डजंट हैव टू बी योर करियर। कभी कभी करियर से भी ब्रेक लेके आपको किसी को फॉल बैक ऑन करना होता है। So fall back on that one thing that made you happy in your college life. So find that thing. Number 7, you don't have to earn immediately. I know with social media there's a lot of pressure. A lot of people are earning in lakhs of rupees, and definitely that is something that you can explore, but you don't have to put a pressure of earning so early in your life. This is literally these 3-4 years of your life, they're not going to come back. You don't have any responsibilities, so it is extremely important to learn new things and not think about how much money it will give you in the future. अपने अपनी jobs 22, 23 अंडरग्रैड पोस्ट ग्रैड के बाद ही स्टार्ट करिए. यू डोंट हैव टू स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली. इनफैक्ट जितना आप सीखोगे कॉलेज में, अपने स्किल्स बढ़ाओगे, आपकी अर्निंग्स उतनी बढ़ेंगी इन द फ्यूचर. इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लर्निंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये आप पूरी जिंदगी करते रहोगे. स्किल सेट में ऐड करेगा, आपकी अर्निंग्स ऐड करेगा. ये दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे यू डोंट फोकस ऑन अर्निंग मनी. वॉट यू फोकस is on learning new things, going for new experiences, meeting new people. These are all of the things that you should actually look forward to and not earning money. अभी पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अभी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर 8, एंड दिस इज द फन वन, टेक अ लॉट ऑफ ट्रिप्स. इतनी सारी जगह पे घूमने जाओ, बजट ट्रैवल करो, गन में ट्रैवल करो. लग्जरी ट्रैवल लाइफ में बहुत होते रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक बार कमा लोगे तब आपको एक टाइम बाद कंफर्ट चाहिए. लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे हम लोग जीते हैं, वो सारी ट्रिप से आते हैं. अपने बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, पहाड़ों पे जाओ, बीचेस पे जाओ, और सब बजट ट्रैवल करो, क्योंकि आपको लाइफ के स्किल्स आ जाएंगे. आपको कैसे मैगी बनानी है केटल के अंदर, सब आ जाएगा. सब्जी कैसे बनानी है केटल के अंदर, वो आ जाएगा. ये सब स्किल्स हॉस्टलर्स को बहुत आती है. जो लोग हॉस्टल नहीं जाते उनके लिए ट्रिप इज लाइक द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. यू विल सी न्यू थिंग्स, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल यू ट्रैकिंग, वाइल यू बजट ट्रैवलिंग. ऑब्वियसली बजट्स तो ज़्यादा होते नहीं है. मम्मी पापा को कन्विंस करना आएगा, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ेंगी. देयर इज सो मच एक्साइटमेंट अराउंड द ट्रिप्स. And the college memories that stay with you, that college experience that stays with you, are those trips. So don't ever skip on the trips that you're going to experience in your college time. Number 9, be yourself. Don't try to fit in. I think this is something that college में a lot of people don't follow. ये दूसरों के perception के हिसाब से सब बदल देते हैं. So what happens is when you're new in college, आप दूसरों का perception की importance ज़्यादा रखते हो और आपको लगता है कि आप उनसे कम हो. हमेशा सामने वाला भी ये सोच रहा है कि वो आपसे कम है किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में. सो जस्ट बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ. यू विल फाइंड द राइट पीपल, यू विल अट्रैक्ट द राइट पीपल. जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो कभी भी आपको जज नहीं करते हैं.
सो प्लीज़ बी योर सेल्फ। आप जैसे हो, आप जैसे रिएक्ट करते हो, आपको जो चीज़ें पसंद है, आप जितने बजट में काम कर सकते हो, जितने बजट में रह सकते हो, कभी बहुत एक्सपेंसिव कैफ़े जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दैट्स प्योर प्रेशर। डोंट डू दैट। डोंट गो फॉर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू डोंट एन्जॉय, दैट यू डोंट really enjoy hanging out with, क्योंकि external pressure is something that you don't need that burden in your life. You don't have to have that burden in your life, especially in your 20s. So just enjoy your life, be authentic to yourself, and the right people will come to you. They will attract you and you will attract them for sure. So just be authentic, be yourself, and keep growing. And that's all. These were my few little advices that I really hope that helped you. ये सारी चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है कॉलेज में. I was not able to do a lot of things in my 20s because I was just hesitant. So just my last advice would be take the first step. In everything, just take the first step. First step ले लोगे, सब कुछ खुद आसानी से हो जाएगा. But just take the first step. That's all for this video. I really hope that you enjoyed this video, found this video helpful. Please ये सारी advices लो और इसको implement करो अपने life में, because college life is never going to come back. So just enjoy, have the time of your life, and subscribe to my channel if you like this video. I'll see you in my next one. Bye.